Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जहांगीर क्लासेस। और आज की क्लास में अगर हम लोग बात करें तो काफी सारी चीजें हैं आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि डिमांड हम इतने टाइम से करते हुए आ रहे हैं। दिस इज द लास्ट सेक्शन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इज like elasticity of demand. What I think is change in demand. So whenever elasticity will be written here, elasticity, it is basically change in demand. Now why the demand is changing? So there are various types of elasticity of demand. Right now we are talking about price elasticity. So it means that what will happen to demand when price will increase or price will decrease, how the demand will react. Demand किस तरीके से react करेगी with the change in price of the commodity. Obviously we know this thing that when price will increase and demand will decrease, if the price will decrease then demand will increase, and keeping the other factors constant, this is what we call law of demand. इसको हम law of demand कहते हैं under the ceteris paribus. ceteris paribus जिसका मतलब होता है, लैटिन वर्ड है keeping other things constant, other things remaining constant. So law of demand tells us the qualitative relationship, qualitative relationship or qualitative relation. Whenever we talk about law of demand tells us that what kind of relationship is there between price and demand of a commodity. ये बताता है, qualitative relationship बताता है, magnitude नहीं बताता that if the price of commodity, let's say price है और प्राइस अगर 10% से राइज होता है तो डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा, ये मैग्नीट्यूड नहीं बताता. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेलिंग अस दैट मैग्नीट्यूड, कितना फर्क पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा. अगर 20% से प्राइस फॉल होता है तो हाउ मच चेंज यू विल बी एबल टू सी इन डिमांड. तो ये सारी चीजें हमें इलास्टिसिटी से पता लगती हैं. अलग अलग चीजों के लिए इलास्टिसिटी यानी कि चेंज इन डिमांड अलग अलग होता है. जैसे दीज पीपल आर स्टैंडिंग आउटसाइड द पब, they are addicted to alcohol, and that this person is saying that the 10 to 25% excise duty will be charged, and these people are very happy and they are replying that we don't have any problem, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ. In this situation here, this person is consuming pizza. I hope you are able to see that. And like this person is consuming pizza, and if the concerned person is telling him that the price has increased by 2 times, दुगने हो गए हैं, पहले अगर 400 का पिज्जा था तो अब 800 का हो गया. So this person is saying no thanks, we don't need pizza. तो डिपेंड करता है, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे एडिक्शन हो गया, देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो गई, देन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट हो गए. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच इंपैक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वैसे अलग अलग टाइप के इलास्टिसिटीज होती हैं. यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इलास्टिसिटी 3 टाइप की होती है. पहली होती है प्राइस इलास्टिसिटी, जो हमारे सिलेबस में है. प्राइस इलास्टिसिटी, दिस इज इन आवर सिलेबस, इसको पढ़ेंगे हम. दूसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी. इनकम के चेंज होने से डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, इलास्टिसिटी. एडिशनल नॉलेज है, जब आप ग्रेजुएशन में जाएं पढ़ें तो आपको पता रहे. मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं और कुछ नहीं बताऊंगा आपको. तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी. एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से दूसरी कमोडिटी की डिमांड पर कितना फर्क पड़ता है. तो दीज 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज आर देयर. हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Let's talk about this particular thing. So we are starting it with definition. Definition से हम लोग start करते हैं. Price elasticity of demand. Even in your examination, if it is like it is written that find out the price elasticity or elasticity of demand, मतलब दोनों का ही same है. Elasticity ही है, एक price elasticity ही है हमारे syllabus में. तो elasticity and price elasticity both are same. What do you mean by price elasticity? So elasticity, as I am telling you, that elasticity means change.
So price elasticity of demand refers to degree of responsiveness, degree of change, degree of responsiveness, how you will respond to it. Responsiveness of demand of a commodity to a change in its price. अगर price change होता है, अगर price में change आता है, तो how the demand will react? Demand कैसे react करेगी? यहाँ पर कितना change आएगा? That is what we call price elasticity of demand. इस तरीके से आप इसका formula लिख सकते हैं. AD is equal to minus. Minus is we put here minus to show the negative relationship. ये जितनी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, ये नोटबुक में राइट डाउन करते रहिए. नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन को शो करने के लिए यहाँ पर माइनस साइन लगाया जाता है. काफी बार इसे इग्नोर भी कर दिया जाता है, तो अगर इग्नोर कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. एंड में जो भी आपका आउटपुट आएगा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट अ माइनस साइन देयर. ये मेरा सजेशन आप लोगों के लिए. द फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एंड एज पर द गिवन फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड and percentage change in price. I'm repeating. Elasticity of demand or price elasticity of demand refers to the ratio of, जब भी डिवाइड किया जाता है किसी को तो आप ऐसे टर्म यूज करते हैं, ratio of percentage change in demand and percentage change in price. कि प्राइस में परसेंटेज चेंज की वजह से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होता है, दैट इज व्हाट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी. देखिए इलास्टिसिटी मतलब ये कितना एक्सपेंड हो जाएगा, ये कितना चेंज हो सकता है. तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज इन डिमांड. ये याद रखिए, चेंज. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल सच थिंग्स इन अ बेटर वे अगर इस तरीके से करेंगे. तो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब कितना इलास्टिक होता है. काफी बार बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है, काफी बार बिल्कुल इलास्टिक नहीं होता, डिपेंड करता है कमोडिटी टू कमोडिटी. परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इसमें इसको लिखते हैं ED इज इक्वल टू इंफिनिटी. क्या आप बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जीरो से लेके इंफिनिटी तक चेंज हो जाती है डिमांड, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक. डेफिनेशन, डायग्राम सब बताऊंगा आगे आने वाली स्लाइड. द नेक्स्ट पॉइंट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. अब इनइलास्टिक का मतलब होता है ED इज इक्वल टू जीरो, कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा डिमांड में. डिमांड विल बी फिक्स, सच एज डिमांड फॉर सॉल्ट, डिमांड फॉर पेट्रोल, डिमांड फॉर मैस्टिक, डिमांड फॉर नीडल, जो सुई धागा वाला नीडल. तो प्राइस चाहे कितना भी चेंज हो जाए, इनकी डिमांड कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है. ऐसा नहीं है कि अगर नीडल का प्राइस ₹1 की नीडल आती है, ₹1 का प्राइस से अगर वो नीडल जो है इफ इट इंक्रीजेस टू ₹1 to 10, देन अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप परचेज करोगे. और ऐसा नहीं है कि अगर ये ₹10 से ₹1 हो जाती है तो आप 10-15 नीडल्स खरीद लोगे. जितना रिक्वायर्ड है उतना ही खरीदेंगे. सेम हैपेंस विद सॉल्ट एज वेल. यहाँ परफेक्टली इलास्टिक जो है ये लग्जरी गुड्स के लिए होता है, इवन दो आगे स्लाइड्स में मैंने बताया. परफेक्टली इनइलास्टिक जो है नेसेसिटी गुड्स के लिए होता है. जो नेसेसिटी है हमारी वो डिमांड करेंगे ही करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ आई नीड 5 liters ऑफ वाटर इन अ डे फॉर माई सर्वाइवल, आई विल ड्रिंक 5 liters ऑफ वाटर, चाहे वो मुझे ₹100 में मिले, चाहे वो मुझे फ्री में मिले, चाहे मुझे 500 में मिले, चाहे 5000 में मिले. तो ये दो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होते. ये बाकी के केसेस आ जाइए. रिलेटिवली इलास्टिक, इसको हम मोर देन वन भी बोलते हैं. ED इज मोर देन वन, मोर देन वन, ग्रेटर देन वन, ऐसे भी बोला जाता है. तो इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट परसेंटेज चेंज इन डिमांड relatively elastic. So percentage change in demand is more than percentage change in price of the commodity. This is what we call relatively elastic demand. ये आइडिया दे रहा हूँ पहले से ताकि आपको पता रहे. relatively inelastic, इसको हम कहते हैं less than one unit, less than unit भी बोला जाता है. one का मतलब unit. It is a situation when percentage change in demand is less than percentage change in price. मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज आता है और डिमांड में कम चेंज आता है. यूनिटरी इलास्टिक, इट इज अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो दोनों ही इक्वल होते हैं आपस में. डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरीके से डायग्राम बनेगा, नहीं बनेगा.
वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑल दीज थिंग्स। यहां से स्टार्ट करेंगे पहले, जैसे हमने पढ़ाया है उसी तरीके से। लेट्स हैव अ लुक ऑल ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डायग्राम पे फोकस कीजिए। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कैसा है? इस तरीके से बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर वाई एक्सिस। Perfectly elastic demand is a situation in which a small change in price, a small change, मतलब which you cannot show on the diagram, or no change, बहुत insignificant change, or because of no change in price, if it leads to infinite change in quantity demanded, इसकी वजह से डिमांड जो है वो इनफाइनाइट चेंजेस दिखाती है, मतलब जीरो से लेके इंफिनिटी तक हो जाती है। दिस इज व्हाट वी कॉल perfectly elastic demand. When demand changes from zero to infinity because of a small change in price, which is not showable in the diagram, or because of no change in price, अगर डिमांड आपकी जीरो से इंफिनिटी तक मूव कर जाती है, दिस इज व्हाट वी कॉल परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इन सच ए केस द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, दिस इज योर डिमांड कर्व, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इट हैपेंस इन केस ऑफ लग्जरी आइटम। लग्जरी आइटम्स के केसेस में ऐसा होता है, एंड गुड्स विच आर हैविंग मेनी सब्स्टिट्यूट, जिनके बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट हैं, उन केसेस में ऐसा होता है। ईडी इज इंफिनिटी हियर। ईडी, आप ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ई मतलब इलास्टिसिटी, स्मॉल डी, काफी लोग इसको स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल डी भी लिखते हैं। तो इन दिस केस दिस इज इंफिनिटी। और यहां पर मैं कहूंगा दैट परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इंफिनिटी ओवर हियर। इंफिनिटी तक चेंज हो सकता है, होता है। अनयूजुअल केस है ये, कोई यूजुअल केस नहीं है, नॉर्मल केस नहीं है, ऐसा माना जाता है। द सेकेंड केस is when change in price of a good does not cause any change in quantity demanded। ये मैं कहता हूं डिमांड फिक्स है। It happens in case of necessity goods। necessity goods जो होते हैं उनके केसेस में ऐसा होता है। कौन से गुड्स? नेसेसिटी गुड्स क्या होते हैं? लाइफ सेविंग ड्रग, मेडिसिन जिसे हम बोलते हैं, सॉल्ट वगैरह, मैच बॉक्स वगैरह, निडल वगैरह, ये वो चीजें होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है ही है। मेडिसिन होना जरूरी है। अगर कोरोना की मेडिसिन जो है रेमडेसिविर, जो एक 4,000 का 3,000 का इंजेक्शन है, अगर वो 70,000 रुपए का भी मिल रहा था मार्केट में, तो भी लोग खरीद रहे थे। यू हैव ऑब्जर्व दैट सिनेरियो इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो डिमांड फॉर मेडिसिन, सॉल्ट, ये नेसेसिटी है। बिना सॉल्ट के आप खाना नहीं खा सकते। 20 रुपए का सॉल्ट अगर 200 रुपए का भी होगा, अगर आप 1 किलो कंज्यूम करते हैं एक महीने में, आप कंज्यूम करोगे ही करोगे। इन सच ए केस योर डिमांड कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये देखिए ऐसा, ये डिमांड कर्व का ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट। ये ओ क्यू अगर क्वांटिटी है तो ये सेम रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस। चाहे सॉल्ट का प्राइस 20 रुपए से 200 रुपए क्यों ना हो जाए, मैच बॉक्स का प्राइस, अगर मंदिर में भी आप एक मैच बॉक्स रखते हैं, मैंने किसी बच्चे से पूछा कि मैच बॉक्स की डिमांड भी जो है परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। बच्चा कहते हैं सर लाइटर यूज कर लेंगे। मैंने कहा बेटा आपने कभी मंदिर के अंदर लाइटर यूज किया है? अच्छा नहीं लगता, नहीं यूज करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो मैच बॉक्स की जगह मैच बॉक्स ही काम आएगा। इन सारे केसेस में, ऐसे सारे गुड्स में ईडी इज इक्वल टू 0, यानी कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड अगर आप निकालेंगे फॉर्मूला वाइज तो ये 0 आएगा। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो इंफिनिटी, मतलब प्राइस तो चेंज होता रहता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे। आप देखिए यहाँ पर, ये आप पी ले लीजिए, दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3, दिस इज P4, दिस इज P5, दिस इज P6। तो कितना भी इंक्रीज हो, कितना भी डिक्रीज हो, ऐसी सिचुएशन में इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स देयर इज नो चेंज इन demand of the commodity for necessity goods irrespective of that thing, that what is the price। प्राइस चाहे कुछ भी हो, जितनी डिमांड है उतनी होगी ही होगी एट एनी कॉस्ट। अब ये तीन सिचुएशन यहां से स्टार्ट होती हैं, केस नंबर 3, 4 एंड 5, in which you will see that some commodities are having more impact, some commodities are having less impact on their demand when price changes, जब प्राइस चेंज होता है। Let's have a look all of you। तो यूनिटरी मतलब यूनिट यानी कि 1। So unitary elastic demand और unit elastic demand और equal to 1। ED is equal to 1, elasticity of demand is equal to 1, ऐसा भी बोला जाता है।
So it is a situation in which percentage change in price and percentage change in quantity demanded are equal. यानी कि ये जो फॉर्मूला है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ED 1 रहता है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दोनों में इक्वल चेंज आया। देखिए कैसे आया। मान लीजिए यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया प्राइस, पहले आप P1 पर थे, अब इंक्रीज हो गया। बिकॉज ऑफ दैट डिमांड डिक्रीजेस, माइनस का साइन लगा दिया है मैंने, डिमांड डिक्रीज हो जाती है 10% से। ईडी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 10% डिवाइडेड बाय 10% इज इक्वल टू 1। आप ये आ जाएगा 1। दोनों में बराबर चेंज आ रहा है, मतलब प्राइस में भी इतना ही चेंज आ रहा है और क्वांटिटी में भी उतना ही चेंज आ रहा है, इक्वल चेंज आ रहा है। ऐसे आप कोई भी डायग्राम बना लीजिए, एक प्राइस दिखा दीजिए, ऐसे ये आ गया। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचिए कि सर ने डायग्राम उठा लिया, एक्सप्लेन कर दिया, बना के तो बताया नहीं। तो ये जो ब्लैक लाइन है, ब्रोकन लाइन ज्यादातर मैं यूज करता हूँ। तो लेट्स से दिस इज 10% एंड दिस इज आल्सो 10%। तो आप ए से बी की तरफ मूव हो रहे हो। यहाँ ये प्राइस चेंज हुआ और ये क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। तो दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही इक्वल हैं। तो ईडी विल बी इक्वल टू 1। ईडी आपकी 1 होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 1। I hope you people must have understood this particular thing. इस केस को समझ चुके होंगे। मैंने हर एक चीज से बता दिया, फॉर्मूला बताया मैंने आपको डायग्रामेटिकली बता दिया, मैंने आपको टेक्सचुअली बता दिया, मैंने आपको जेस्चर्स में बता दिया, बाकी हर एक चीज के थ्रू बता दिया। मेरे ख्याल से आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल सच थिंग्स। बाकी इसी तरीके की और भी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर। तो यहाँ पर कार्ड सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो और भी काफी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, IED, सॉरी 12th का है, 12th 11th, हर एक चीज अवेलेबल है। आप जाइए चेक कीजिए, प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। तो ये नेक्स्ट केस है हमारा, फोर्थ केस, दैट इज इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक चेंज होने वाली, इसको हम कहते हैं इलास्टिक को बोला, रिलेटिवली इलास्टिक भी बोला जाता है, इसको इलास्टिक डिमांड भी बोला जाता है। देखिए आप नीचे नाम का ध्यान रखिए। शेक्सपियर कहते हैं नाम में क्या रखा है, इकोनॉमिक्स कहते हैं नाम में ही सब कुछ रखा है बाबा। तो relatively elastic demand और greater than unit elastic demand और more than 1, elasticity is more than 1, ऐसे बोला जाता है। elastic demand ED more than 1, ED more than 1, वो इस तरीके से लिखा हुआ है शॉर्टकट में। It refers to a situation, ED ज्यादा है, डिमांड में ज्यादा चेंज हो रहा है, समझिए इस चीज को। It is a situation in which percentage change in quantity demanded of a good is greater, मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, then percentage change in its price, प्राइस में कम चेंज आया, डिमांड में ज्यादा आया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल, डिमांड में ज्यादा चेंज आया, ED more than 1। लेट्स हैव अ लुक और समझ लेते हैं डिटेल में। ED more than 1, demanded, quantity demanded is greater than percentage change in its price। देखिए यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, ये 10% का चेंज आया प्राइस में। आप इसको पॉजिटिव ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए, इट इज टोटली अप टू यू। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ डिमांड लगा के आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वांटिटी में चेंज आया 50%। तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी थोड़ी चीजें मेंशन कर दी हैं। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है। तो लेट्स से यहाँ पर प्राइस जो है इंक्रीज हो गया 10% से, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हो गई, ये डिक्रीज हो गई। तो डिमांड में चेंज पहले लेंगे, डिवाइडेड बाय प्राइस में चेंज इज इक्वल टू 5। 5 इज बेसिकली मोर देन 1, तो ED इज मोर देन 1। 1 से ही कंपेयर किया जाता है। सर हमेशा इसको ऐसा क्यों लिखते हैं, माइनस जरूर लगा दीजिए नेगेटिव रिलेशनशिप शो करने के लिए जो है। और मैं आपको बता दूं कि -5 इज मोर देन -2। यहाँ पर माइनस सिर्फ हम नेगेटिव रिलेशनशिप शो करने के लिए लगाते हैं। बच्चे कहते हैं सर -5 और -2 इन दोनों में इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा होगी? भाई 5 की ज्यादा होगी। वो माइनस वाला मैथमेटिकल कैलकुलेशन मत लेके आना यहाँ पर, अदरवाइज दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो -5 is more than -2 over here। माइनस सिर्फ इसलिए लगाते हैं so that we are showing the negative relationship between price and quantity demanded। Do remember this thing। तो ये डायग्रामेटिकली बता दिया, फॉर्मूला वाइज बता दिया, न्यूमेरिकली बता दिया, टेक्सचुअली बता दिया, हर एक तरीके से आपको समझा दिया है। आई होप तो वीडियोस अच्छे लगते होंगे, समझ में आते होंगे। समझ में आते हैं तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, हमें अच्छा लगता है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, हमें और भी अच्छा लगता है। और शेयर कर दीजिए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है हमारी। तो यहाँ पर लास्ट केस हमारे पास गिवन है, इन इलास्टिक डिमांड। समझिए बेटा क्या होता है इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही चेंज नहीं आता।
वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, ये इनइलास्टिक डिमांड होता है। इनइलास्टिक का मतलब लेस देन 1, रिलेटिवली इनइलास्टिक ऐसा भी बोलते हैं इसको। नाम जरूर ध्यान रखिए, शेक्सपियर मत बन जाना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी इकोनॉमिक्स में। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड और लेस देन इलास्टिक डिमांड ऐसा भी बोला जाता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एडी लेस देन 1। It refers to a situation, वो situation in which percentage change in quantity demanded, जो percentage change in quantity demanded है वो less होता है than percentage change in its price। प्राइस में कम चेंज आता है, डिमांड में ज्यादा चेंज आता है। पीछे क्या था, पीछे उल्टा था। ऐसे केसेस को हम बोलते हैं ईडी लेस देन 1। समझिए कैसे, यहाँ पर शो किया हुआ है। ये प्राइस इंक्रीज हुआ 40% से, एज यू ऑल कैन सी प्राइस 40% से इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से क्वांटिटी में जो चेंज आया वो चेंज आया 10%, दे रहा है 10%। थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाते हैं, ये एक ब्रोकन लाइन है, दोनों ही डॉटेड लाइन है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये ओरिजिनल डिमांड है और ये ओरिजिनल प्राइस है। 10 से 14 हो गया, परसेंटेज निकाली, 40% आएगा, यहाँ पे 10% आया। डिमांड में कितना चेंज आया, डिमांड में चेंज आया -10। प्राइस में कितना आया 40। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आएगा 0.25। 0.25 इज लेस देन 1, आंसर निकाल लीजिए। ईडी इज लेस देन 1, ईडी इज relatively inelastic, elasticity of demand is inelastic, ऐसा कुछ बोलेंगे यहाँ पर। So these are the various cases of degrees of elasticity of demand, जिनको मैंने यहाँ पर आपको बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से डिस्कस किया है। आई होप तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो ये सारा खेल सिर्फ इन्हीं दो चीजों का है, ये इक्वल है, ज्यादा है, कम है, क्या नहीं है। बाकी अगर कोई डाउट है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। हर एक कमेंट में पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई जरूर करता हूं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सोशल हैंडल्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मनोज जहांगीर क्लासेस के नाम से ही इंस्टा और एफबी पर अवेलेबल हैं हम। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें कुछ सर्कुलर सीबीएसई नोटिफिकेशन या फिर नोट्स वगैरह के लिए, तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके की वीडियोस और लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, सिफारिश है। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग। लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तब तक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते रहिए मनोज जहांगीर क्लासेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास।